بسم الله الرحمن الرحيم. عیسائیوں کی ہاں کوئی ایسی لڑکی نہ تھی کہ تم اس کا عشق اختیار کرتے، یا تم مسلمانوں نے کوئی بڑی فتح حاصل کر لی ہے کہ تم ان کے ہو گئے؟ اول یہ کہ ایسی عیسائی لڑکیاں ہیں جن کے حسن کے سامنے میں سر تسلیم خم کرتا، لیکن راحلہ کی صرف اسی چیز نے نہیں صحرا کی گمشدہ چیز بنایا۔ دوسرے، میں مصلحت پسند نہیں ہوں، نہ ہی فائدہ میرا مقصود۔ میں تو راحلہ کے عشق کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اے زید، کیا عربوں کے ہاں کوئی جوان نہ تھا کہ تم نے ایک یتیم عیسائی کو پسند کیا؟ اے قبیلے والو، مجھے ملامت مت کرو۔ خدا کے فضل سے میرے 3 بیٹے ہیں، عمر دراز ہو ان کی۔ میں نے کہا خدا نے مجھے 4تھا بیٹا بخشا ہے۔ مجھے فریب نہ دو، وہ عیسائی تھا اور اب تک زنار باندھتا ہے۔ اس نے راحلہ کے عشق کے سبب فریب کیا۔ کون جانتا ہے وہ دل سے ایمان کا اقرار کرتا ہے یا زبان سے؟ ہم کسی کے بارے میں نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے ہیں۔ ہم سب کافر تھے، یاد ہے نا؟ اور جب ہم سب مسلمان ہو گئے تو کسی نے مجھ پر تہمت نہ لگائی جو اب تم ایک مسلمان پر لگاتے ہو۔ راحلہ، اگر عبداللہ یتیم کا عیسائی باپ تمہاری خواستگاری کے لیے آئے تو عبداللہ امیر آدمی نہیں ہے۔ اس کے پاس جو کچھ ہے اس کی اپنی محنت سے ہے۔ اب وہ طاقت اسی کام پر خرچ کرے گا۔ راحلہ، کیا تم صحرا کی گمشدہ موج نہ تھی؟ اب اپنا ہونا دنیا کو بتاؤ۔ موت آئے اسے جو ریت کی تہ میں چھپا رہے۔ چیزیں تہ میں ہوتی ہیں اور پھر اظہار کرتی ہیں۔ میں بھی ایک اظہار تھی۔ اگر چاہو تو تمہارا والد خواستگاری کے لیے آئے۔ محبوب، میں بھی تمہاری طرح عرصے تک صحرا کی گمشدہ موج تھی۔ کوئی نہیں جانتا ان پتھروں سے اونٹ کیا آٹا پیسے گا۔
اور کوئی نہیں جانتا کہ کیسی روٹی پکے گی۔ اس شادی میں دو باتیں چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیات کا سننا ایک نیکی کا کام ہے، اور اگر جاہلیت کے زمانے کو دیکھیں تو آج کا دن انہی میں سے ایک ہے۔ یہ دو جشن اکٹھے ہیں۔ عبداللہ عیسائی راحلہ کا ہاتھ تھامے گا اور وہ سائے سے خورشید کی روشنی میں قدم رکھے گا۔ ویسے کیا آپ نے ساری باتیں بتا دی ہیں؟ 3 بار اور 3 صورتوں میں۔ اول یہ کہ خدا کا کلام وہ سنیں، دوسرے یہ کہ وہ ایک کمرے میں محرمانہ سنیں، اور تیسرے یہ کہ ایک میدان میں جمع ہو کر سب لوگ سنیں۔ انسان ہے، کوئی نہیں جانتا۔ کوفے کا آدمی جلدی میں آیا ہے اور جلدی جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کوفیوں نے مسلم بن عقیل کا سر کاٹ کر نیزے پر لٹکا دیا ہے اور دارالحکومت لے آئے ہیں۔ اس ماہ محرم میں چلو عبداللہ، وہ ہمارے منتظر ہے۔ کیا
کیا مسلم بن عقیل کافروں، منکروں اور منافقوں میں سے تھے؟ نہیں، وہ مومنین میں سے تھے، بلکہ ان میں سے بھی بہترین، ہمارے اور امام حسین ابن علی کے قاصد۔ کیا عظیم مرتبہ ہے! ہاں، میں نہیں جانتا۔ کوفیوں کو باور کرایا گیا تھا کہ امام حسین ابن علی کوفہ جا کے اسے ایمان کا گھر بنائیں۔ مسلم ان کے نمائندے اور چچا زاد بھائی تھے۔ ابن علی کے بارے کیا جانتے ہو؟ وہ مقتدا ہے راحلہ کے۔ میں نے پہلی بار اسے احساس کیا۔ میں نے انہیں ایک بار دیکھا۔ انہوں نے عیسائی قیدیوں کے لیے عیسیٰ مسیح کو شفاعت کے طور پر دیا تاکہ وہ شورش نہ کریں۔ انہوں نے ان کی زنجیریں کاٹ دی۔ ابھی تک ان کی باتیں میرے کانوں میں ہیں۔ فرمایا، ہم زنجیریں کاٹنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ پہنانے۔ جنگ جمل میں ہم ایرانیوں پر ہنستے تھے۔ حسین ابن علی نے فرمایا، ہم آئے ہیں کہ ظالم کے خلاف لڑیں، نہ کہ خود ظالم بن جائیں۔ لوگ بہت کچھ بتاتے ہیں، ان کی باتیں سن کر لوگ ان جیسے کیوں نہیں؟ خبر، کاش میں اپنے آپ سے کہتا یہ خبر درست نہ ہو۔ وہ میدان سے گزر آئے ہیں۔ تلوار تلوار کہاں ہے؟ تلوار جانے دے تلوار۔ کیا اسے عیسائی کی کمر میں باندھیں گے؟ مخالف ہو بیٹے۔ ہم 3 نسلوں سے مسلمان ہیں اور وہ نہیں۔ اسلام کی بات میں پہلی بار سن رہا ہوں، اور تمہارے مسلمان ہونے پر مجھے جاہلیت کے غرور کی بو آتی ہے۔ ہم 100 سال سے مسلمان ہیں۔ کیسا فخر! تم نے اسلام والد سے پایا اور اس نے یہ خزانہ اپنی محنت سے۔ مرحبا۔ اس نے مسیح کا انکار نہیں کیا۔ انکار کرتا؟ مسیح کے منکر اس کے خون کے پیاسے تھے۔ حضرت عیسیٰ خدا کے برگزیدہ تھے، اور اب ان کا معتقد سید عربی کے کلمات میں خدا کی آواز سنتا ہے۔ مہمان آ گئے ہیں۔ کیا شیوخ عرب اس کی ملامت کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بیٹی کی شادی ان جھگڑوں میں کریں گے؟ مہمان آ گئے، ہمیں ان کا استقبال کرنا چاہیے۔ اس تلوار کو بطور تحفہ زید اپنے داماد کو پیش کرتا ہے۔ میں چاندی کا یہ تحفہ اپنے دوسرے والد کو پیش کرتا ہوں۔
अपनी दुल्हन राहिला की तरफ से ये घोड़ा कबूल करो, ये 10 मगरबी दीनार का है। मेरी तरफ से उसके लिए हैं ये गोशवारे खुतन के। अगर कोई उस तक पहुंचा दे ये निशानी मोहब्बत की तो मुझ पर एहसान होगा। मेरे वालिद की मोहब्बत को कबूल करो और अपने भाई के हाथों को। मैं आपके छोटे बेटे की तरह हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। सलामत चलो भाई। बड़ा मुबारक। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। आइए रखिए। बड़ा मुबारक। अल्लाह का काम है। सलामत रहो। ये आया 37 बार खास्तगारी राहिला के लिए। मैंने हर बार कहा, जवाब दिया ना, लेकिन आखिरी बार मेरे इनकार पर बहुत गमगीन हुआ। इसमें जाने की ताकत न थी, लेकिन इस कमरे में इसकी आंखों में मैंने वो रोशनी देखी जो राहिला की आंखों में चमकती थी। मैंने जान लिया कि हाँ या ना की जगह नहीं। ये काम तो बहुत देर से हो चुका है, और अगर खुदा ये चाहता है तो फिर मैं कौन होता हूँ कि उसकी मशीयत में दखल दूं। इन गोशवारों को अब्दुल्ला बिन अयूब ने दिया है और तमन्ना करता है तुम इन्हें कबूल करो। खुदा अजर दे, राहिला कबूल करती है।
मरहबा। शायद उनकी मौत की खबर गलत बयान की गई, कोई यकीन नहीं करता। कत्ल न के मौत। शरबत पीजिए, धान को ताजा कीजिए। जैतून, अंजीर ये वो मेवे हैं जिनकी कसम खुदा ने उठाई है। कत्ल कब हुआ? न डरो, हुआ या ना हुआ, हम हुज्जत के तौर पर सुन रहे हैं। अक्सर गलत किस्म के कासिद ये बातें करते हैं। इस दौर में बहुत से लोगों ने फितना पर्दाजी और खुदनुमाई को पेशा बना लिया है। ये खबर मुहमिल है। ये कैसे हो सकता है कि एक वक्त में लोग उनके पीछे नमाज पढ़ें और दूसरे वक्त उनके सर को शहर में घुमाएं? ये मेरी दोनों आंखों की रोशनी और दोनों कानों की समात गवाह है कि उन्होंने झूठे कासिदों को भेजा कि ऐसे सितमज़दा लोगों के हामी आओ। ऐसे खुतूत कई बार लिखे कि कूफा ज़ेरे बारे जुल्म जाबिर है, आए और सुन्नत मतरूक पैगंबर को जारी करें। अगर ऐसा है तो ये कैसे मेहमान नवाज हैं कि अपने मेहमान को दुश्मन के हवाले कर दें? ये खबर दुरुस्त नहीं है। कौन है जो मेरी मदद करे? क्या ये सफर जुलजना के सवार के लिए फर्ज था? कल मसीह को टहलवा सलीब पर चढ़ाए। क्या कहा? ये कैसे मुमकिन है कि जो कुछ उन्होंने मुस्लिम बिन अकील के साथ किया है हुसैन इब्न अली के साथ न करेंगे? हाँ, हुसैन इब्न अली और उनका खानदान कूफे की सफर पर है। कौन सी वादी, कौन सी मंजिल, उन्हें किस रास्ते से ले गए हैं? वादिये वहशत में मसीह सलीम के लिए रवाना हो गए। ये मेरे लिए क्या इशारा है? जवान, किसी ने तुमसे इशारे में बात नहीं की? क्या आप में से कोई न था जिसने सलीब की बात की? कूफे में मौत अर्ज़ां है। हाँ, कूफे में मौत सस्ती बेचते हैं। किस तरह खबर उन तक पहुंचे? कूफे के सवार के पहुंचने से खबर उन तक पहुंच जाएगी। काश वो रास्ते से लौट जाएं। उनके साथ साथी नहीं है जो खून मुस्लिम के लिए खड़े हों। ना, ये सफर लाजिम था। उन्होंने कूफा पर हुक्मरानी की। कौन हुसैन इब्न अली से बेहतर है? क्या वो हुक्मरानी के लायक नहीं? मैं जख्म ताना समझता हूँ। खुदा गुनाहगारों को बख्शे, खुदा ही है। क्या ये मुनकिरों वाली बात नहीं कि हुसैन इब्न अली ने ये सफर हुकूमत के लिए किया है? लानत हो खुदा की और कम हो बेहुदा लोग। कौन सा मकाम हक है जो हुसैन इब्न अली नहीं रखते? कहाँ है मददगार जो मेरी मदद करे? मैंने जो सुना है वो ही कहता हूँ। आया हुसैन इब्न अली का हुकूमत पर हक नहीं है? मैं कहता हूँ है। और वो इस हक को हासिल करने क्यों न जाए? नादान किस तरह दूसरों को सिखाता है। नजर रहे बनी ताइफ, क्यों ऐसा कहते हो कि जो नहीं जानते? जानते हो अगर हुसैन इब्न अली गए हैं तो अजीम काम के लिए गए हैं। क्या कूफा पर हुकूमत अजीम काम नहीं है? इससे बरतर मौत है। नहीं, उम्वियों के लिए मुमकिन है। हाँ, कुछ लोग इस सफर की दलील कुछ देते हैं, बास कुछ और। इसके दरमियान खुदा आलिम है, हम नहीं। हम इस सवाल को क्यों ना जान सकेंगे? अगर उन्होंने उनके कासिद को खत्म कर दिया तो फिर क्यों ना करेंगे उनको कत्ल, क्योंकि वो अब कूफा की जानिब जा रहे हैं। सामान सफर के साथ तैयार होकर। हुसैन इब्न अली की मौत, ये कैसी सोच है? कौन मुसलमान ऐसा सोचेगा? कौन है
جو میری مدد کرے. کون تھا؟ کس نے یہ بات کہی ہے؟ کیا تم میں سے کوئی مدد چاہتا ہے؟ کس نے کہا مدد کے لیے؟ تم میں سے کوئی تھا؟ ہم میں سے کوئی نہ تھا بیٹے. شاید تم نے گھر سے باہر کی آواز سنی ہو. شاید شور نے تمہیں وہم میں ڈال دیا ہو. کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ کیا ایسی کوئی چیز ہے جو ہم نہیں سنتے؟ اس نے بیعت نہیں کی اور جو بیعت نہیں کرتا خود مدعی ہے. بے خدا ہمیں مدد کے لیے جانا چاہیے. میں تو اندھا عاجز ہوں. کون جانتا ہے کیا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم نہ سمجھیں اور نہ جائیں؟ جا رہا ہے. کہاں عبداللہ؟ راہیلہ سے بھی نہ ملا. یہ دروازہ بند ہے. دیکھ لیں عیسائی کو چننے کا نتیجہ. وہ یہاں نہ رہا. وہ اس جسارت کا حساب اپنے خون سے دے گا.
کوفے کا راستہ کس طرف ہے؟ ستاروں، بتاؤ کس طرف ہے راستہ؟ بھٹکتا پھر رہا ہوں، اگر نہ ملا تو گم ہو جاؤں گا۔ جانور پانی تک پہنچ گئے ہیں، خوب مزے لے کے پینا۔ جانا کدھر ہے؟ ٹھہرو، کون ہو تم؟ تلوار چھین لو اس کی۔ کیا تم رات اور دن کے لٹیروں کو نہیں پہچانتے؟ مجھے تو تم لٹیرے دکھائی دیتے ہو۔ مجھے لٹیرا کہہ رہے ہو تم؟ نہیں ہو، میں کوفہ کا مسافر ہوں اور پانی کی تلاش میں ہوں۔ سچ کہتے ہو؟ سچ کہتا ہوں، اگر اونٹنی کا دودھ ہے تو لے آؤ۔ کیا یہ محرم کا مہینہ نہیں ہے اور اس میں تلوار اٹھانا حرام ہے؟ ہم بیاباں میں ہیں، دن اور رات میں تمیز نہیں کرتے۔ آج کون سا دن ہے اور کون سی رات؟ 9ویں کی رات گزر گئی اور سورج نکلے گا تو محرم کی 10ویں ہوگی۔ اس رات مجھے حجلہ عروسی میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ بے گناہ کا خون نہیں بہاتے۔ بیٹھ جاؤ۔ جانور پیاسا ہے، اسے پانی پلاؤ۔ اونٹنی کا دودھ یہی پیش کرنے کے قابل ہے۔ تم کہو، تم نے اپنی دلہن کو کیوں چھوڑا؟ میرے پاؤں ٹوٹ جائیں اگر اسے چھوڑ دوں۔ راحلہ تو مشک نافہ کی طرح معطر ہے، اسے دیکھ کر تو ایران کی وادیوں کے پھول بھی شرما جائیں۔ بس تم نے عقل کا دامن چھوڑ دیا
जवाब तो है कि दूं, लेकिन अगर जानो तो वो कौन सी अहम चीज हो सकती है कि इस रात जल्दी में हो? तलाश में हूँ हुसैन इब्ने अली की। ये इस सवाल का जवाब नहीं है। वो जानते हैं। बस तुम तारीकी में हकीकत की तलाश में हो। अगर अब न गया तो हरगिज न देख सकूंगा। मैंने उन्हें एक दिन पहले देखा था। हम ऊँट चढ़ा रहे थे वादी की उस तरफ जहाँ 7 दिन रात दौड़ते रहो तो भी कुछ न पा सकोगे। वो और उनके साथी खेमा डाले हुए थे। उनका मकसद कूफा था। मैंने उन्हें दूध का प्याला पेश किया। उन्होंने मुझे ऊंटों का अमीर होने को कहा। क्या उन्होंने कोई वादा किया कि वो अगर कूफा में रहें तो कुछ तुम्हें बख्श देंगे? उन्होंने हमारे साथ नमाज पढ़ी। मैंने उनसे कहा भी कूफा में बहुत जुल्म हो रहा है। उन्होंने तलखी से मुस्कुराते हुए मुझसे बड़ी मानी खेज अलविदा कही। गोया वो वापस आने का इशारा न था। घोड़ा तैयार है। मुझे कूफे का रास्ता बताओ। कैसे बताऊं कि जरा सी गलती से रास्ता गुम हो जाता है। वो सितारा देख रहे हो? हमेशा इसे सामने रखो। ये लो। अगर हुसैन इब्ने अली से मिलो तो उनसे कहना हमारी ऊँटनियों का दूध बढ़ गया है। उसने जो बातें की बहुत उम्दा थी। तुम ईरान के फूलों के इत्र के बारे में क्या जानते हो?
अजल रसीदा। कौन हो तुम? हमें नहीं पहचानते, ये जमाने की बदी है कि अरब की एक पाकीज़ा तरीन लड़की की हुर्मत को पामाल करे और हम इंतकाम के लिए सुकून से रहें। ये है जैद की मोहब्बत का जवाब, जिसने तुम जैसे बेकबीला ईसाई को अपना नहायत ही करीबी अजीज बनाया। तुमने बुरा किया, तुम्हें इबरत का निशान होना चाहिए, तुम्हें लोगों के सामने जलील होना चाहिए कि तुम मोमिनीन की शराबत को बदनाम करते हो। तुम राहिला को बदनाम करके इंतकाम से बच सकते हो? कैसी बातें करते हो? कैसी बदनामी? तुमने राहिला को छोड़ के बदनाम किया नहीं जानते? सारा कबीला ये कह रहा है कि जैद की बेटी राहिला में ऐसी क्या बुराई थी कि वो उसे छोड़कर भाग गया। तमाम कबीले, तमाम अरब को तुम एक ईसाई ने मुसलमानों को बदनाम किया और आप बदनाम करने वाले तुम तलवार का लुकमा हो। उठो, हमारे साथ आओ। मैं वापस नहीं जा सकता, ना मैं खुद आया हूं ना मैं खुद जाऊंगा। हमने कसम खाई थी, या तुम्हारे साथ वापस जाएंगे या तुम्हारे सर के साथ, या तलवार चलाओ, लड़ो। मैं राहिला के भाइयों पर हाथ नहीं उठा सकता। हाथ नहीं उठा सकता, नहीं लड़ सकता, पकड़ो तलवार। वापस चलो या फिर बहादुरों की तरह जंग करो, मारो मारो। मुकाबला क्यों नहीं करते? उठाओ हाथ, उठाओ। आशूरे मुहर्रम में खूंरेजी हराम है। खूंरेजी उसके लिए जो बेशर्फ हुआ हलाल तर है। मैं अपने अजीजों पर हमला नहीं कर सकता। तुम बुजदिल हो, बुजदिल। बुजदिली की बातें छोड़ो। मैंने सारी उम्र यही काम किया है, तलवार से कभी गफलत नहीं बरती। मुझे शुजात से मत डराओ। ये आखिरी बार नहीं है कि मैं मुहासरे में हूँ। मैं हरगिज़ तलवार ना उठाऊंगा। मुझे ना उकसाओ कि मैं तुम्हारी तलवारों से तलवारें टकराऊं। तुम दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा अजीज हो। मैं कसम खाता हूं, अगर मैंने तलवार उठा ली तो तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। मैं तलवार को अपने दिल के खून से तो रंगना पसंद कर लूंगा, ना कि तुम्हारे। मैं हरगिज़ नहीं होना चाहता शर्मिंदा। कहीं ऐसा ना हो कि राहिला के दीदार से महरूम हो जाऊं। मेरे लिए ज़मीर का हुक्म वाजिब है कि उनके दीदार से महरूम न रहूं। जवाब दो, क्या इस तरह हमारी बदनामी धुल जाएगी और ये दाग मिट जाएगा? अरब के लोग हम पर हंसते हैं, हम उनकी आंखों में आंखें नहीं डाल सकते। ये तू था जो राहिला के लिए 37 बार आया और हर बार ना सुनकर चला गया। खुदा की कसम, ये मैं ही था। अगर 1000 बार मना करते तो 1000 बार आता। अगर दीवार दरमियान कर देते, नकब लगा कर आता। अगर दरवाजा बंद कर देते तो हवा की तरह आता। जान दे दो, इसकी कोई कीमत नहीं। कसम खुदा की जो अर्ज़ व समा का मालिक है, मैं राहिला को जान से अजीज रखता हूँ। कहो अब्दुल्ला, मुझसे क्या बदी देखी? मैं यही पूछने आई हूँ, मुझसे क्यों दूर हुए? बताओ, मुझे क्यों बदनाम किया? क्या बात थी ऐसा हुआ? क्यों दूर हुए? दिन और रात की कसम, अगर तेरी मोहब्बत हासिल न हो तो मैं इन तमाम चीजों से महरूम हो जाऊं। तेरी बीमारी मुझे लग जाए, जमीन पर तेरा साया कम ना हो, ये सब कुछ मेरे इख्तियार में नहीं। मुझे बुलावे पर जाना है। कहो अब्दुल्ला, कहो।
कहो कहाँ बुलाए गए हो? मैं कूफे की तरफ से आवाज सुनता हूँ जिससे कोई और नहीं सुनता। हाँ राहिला, मेरा इस्लाम हुसैन इब्ने अली का मरहून मिन्नत था। जैसा कि तुम कहती हो, मैंने ये आवाज शयूख की मजलिस में सुनी थी जो ये कहते थे हुसैन दुनिया के रास्ते पर गए हैं। मैंने सोचा देर न हो जाए, मैं उनके दीदार से कहीं महरूम न रह जाऊं और हकीकत मुझ पर छुपी रहे। सारी उम्र शक के साइबान के नीचे अफसोस करूं कि क्यों न हकीकत देखी और जानी। तुमने सुना? वो शक में है। उसे बात करने दो। मैंने मजलिस में सुना कि वो मदद चाहते हैं। मैंने देखा कि ये आवाज सिर्फ मैं ही सुन रहा हूँ। वो आवाज कह रही थी, कहाँ है वो मददगार जो मेरी मदद करे? और मैं चल पड़ा। कैसी बात करता है? सुकून से रहो। ये वही आवाज थी जो मुझे ख्वाब में बुलाती थी। तो 3 लोगों की आवाजों में मैं पहचान न पाया था और शक से पहले ये आवाज मंजिल मकसूद पर हुसैन इब्ने अली को तलाश कर चुकी थी। बता तू, जो बात ये कह रहा है ये तुम्हारी बदनामी का जवाब है राहिला? चुप रहे भाई ताहिर, मेरी बदनामी की क्या बात करते हैं? बदनाम नहीं, इज्जत के साथ वापस जाऊंगी। जाने दें इन्हें, क्योंकि इन्होंने फैसला कर लिया है। ये लें, अमानत है ये, लें। ढाल मंजिल के लिए है। और ये रास्ते के लिए है। अब्दुल्ला जाओ, जहाँ तुम्हें बुलाया गया है, जल्दी जाओ। तुम देर क्यों कर रहे हो? क्या सोच रहे हो? मर्दे मोमिन की मदद या इनकार? राहिला, तुम कबीले में कैसे वापस जाओगी? सर बुलंद।
तुम जानना चाहते हो कि अब तुम कहाँ हो? खुदा की कसम ये सब शिकस्ता बुत हैं। ये जहालत के जमाने के बुत हैं और कोई भी मुसाफिर इन पर पत्थर फेंके बगैर नहीं गुजरता। मेरे बाप दादा इनके मुतवल्ली थे और अब उनका गुनाह। किसी जमाने में उन पर निछावर करते थे सीमुजर और अब फेंकते हैं पत्थर। मैं खुदाए जिंदा की तारीफ करता हूँ जो आसमान पर है। काश जानता हुसैन इब्न अली ने इस बारे क्या फरमाया। लोग क्यों शिकस्ता बुतों पर संग भारी करते हैं जबकि जिंदा बुत मौजूद हैं। मुझे जल्दी जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। रास्ता जाते हो तो फिर कर जाना। से तमज़दा लोगों को बिठा दिया गया है। अगर इनकी मदद करता हूँ तो इमाम की राह से हटूं, पुश्त फेरूं तो मरते बुज़दिल कहलाऊं। चल मेरे घोड़े। सामान जमा करो, मैं इसके पीछे जाता हूँ। जो पकड़ेगा माल उसी का। कहाँ? मुझे तो अकेला ना छोड़ो।